Good evening, dear friends. Jai Hind. We today try to understand the nuances of economic survey and how questions can arise from this document, and how the principles, the doctrines that we have learned, the concepts that we have learned, how that actually now is seen to be coming into practice. तो इस पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे कि हमने जो अभी तक पढ़ाई की है इकोनॉमी की 5 से 7 चैप्टर्स अच्छे पढ़े हैं ठीक से हमने, वो कैसे इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो ट्रांसलेट हो रहे हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस प्रकार से ट्रांसलेट हो रहे हैं. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. Okay, so there are certain things which I am presuming that you must be remembering, even if loosely, you must be recalling those concepts. और नहीं तो उनको बीच बीच में हम लोग टच करते हुए भी चलेंगे. तो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जो सबसे पहली जो 3 सबसे प्राथमिक बातें हैं, वो नंबर 1 ये है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो दरअसल एक तरह का रिपोर्ट कार्ड जैसा है परफॉर्मेंस का, इकोनॉमी के परफॉर्मेंस का. वी शुड नॉट कॉल इट गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस, इकोनॉमी के परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड जैसा है. The second important point, my dear friends, is this is not a constitutional requirement. Okay, unlike annual financial statements, you remember what is annual financial statement and how it derives its origin from constitutional provisions. Loosely, we call them budget and budgetary process. We understood. So I hope you recall that. Yes. So this is not the scenario here. Economic survey is not a constitutionally originated document. Okay. So there is no constitutional compulsion upon the government to put it across the parliament. The third point is that it is prepared by the Department of Economic Affairs under the supervision of the Chief Economic Advisor. That is the institutional arrangement. Okay. So that is the institutional arrangement for normal times. In case the authority named here that is not available, in that scenario, the next authority, principal economic advisor, as has been case in this year, it is the principal economic advisor and the rules supervision this has been done. Okay, but I do not see it to be a very important point here. But what you should understand that just because principal economic advisor has supervised the preparation of this economic survey, that does not mean that this is the institutional setup. Ordinary institutional setup is that it is the chief economic advisor who supervises this particular process. Okay, we move ahead a little bit. If we think about the brief history of how this process has evolved over the period of time, you can see that it is all started in the 1950s. And economic survey did not used to be a separate, it used to be a separate document, but it used to be laid before the parliament along with the budget itself. Okay, initially that was the arrangement. In 1964, this separation was made and budget was laid down separately and economic survey separate. So this is an important date, important year for this purpose. The next is economic survey. When economic survey started coming in 2 volumes, तो ये 2 जो है संस्करणों में फिर ये आने लगा, 2 वॉल्यूम्स में आने लगा 2014-15 से. एक छोटी सी बात मैंने कहीं सुनी, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या कहीं मेरे दिमाग में आई, मैंने सुनी कि एक बार और एक्सपेरिमेंट किया गया था 2 वॉल्यूम का. इस बीच में एक बार और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और वो एक्सपेरिमेंट था 1991. ठीक है, लेकिन वो बस उसी साल एक सिंगल ईयर में 2 वॉल्यूम आया था और जो है फिर वो खत्म हो गया. फिर सीधे 2014-15 में प्रॉपरली 2 वॉल्यूम्स जो है वो किए गए. ठीक है. Now again you can see that we have gone back to the regime of 1 volume economic survey, and the same volume has some textual elements, and then there are appendices at the end of the economic survey. वॉल्यूम एक ही रहेगा. जो 2 वॉल्यूम में पहले आता था उसमें क्या किया कि जो स्टैटिस्टिकल पार्ट था उसको अपेंडिक्स बना के पीछे लगा दिया गया, एंड दैट्स इट. इसके बारे में बहुत कोई कंसेप्चुअल चीज नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन इट इज सेड, यू शुड अंडरस्टैंड एंड वी ऑल शुड अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दिस, दैट इट इज सेड दैट इकोनॉमिक सर्वे का जो वॉल्यूम हो, चाहे उसका प्रेजेंटेशन हो, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के का जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, क्लैरिटी ऑफ विजन है, उसको रिप्रेजेंट करता है.
तो कहते हैं कि जितना बढ़िया सक्सेंट हो, जितना अच्छे से कंसाइज इकोनॉमिक सर्वे हो, अननेसेसरी का डेटा नहीं हो, पॉलिसी व्यूज हो, परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स हो और सक्सेंटली वो अरेंज हो, दैट्स अ बेटर इकोनॉमिक सर्वे रादर देन volumes and volumes of unnecessary information or complex statistics. That is not for what economic survey is meant. So yes, it is a welcome measure. Coming back to one single volume of economic survey, where majority of the content is vision and concept, and a minority is statistics. So that's a welcome change. Please understand that there is certain terminology that you must know before we delve into economic survey, and that sometimes gets confusing. And that is the different kinds of estimates. You will agree that if we do not repeat and revise this thing 10 times, it is difficult to grasp it. Okay, there some amount of confusion still remains. That happens. So on the way, see, different sectors, they adopt different strategies. This is one point you should note. एग्रीकल्चर, फूड ग्रेन का मान लीजिए बात हो रहा है, तो एग्रीकल्चर में फूड ग्रेन में जो एस्टिमेट्स आते रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिवाइज एस्टिमेट, इस तरह से भी चलता है। ये एक जनरल प्रेजेंटेशन है जीडीपी के ग्रोथ को लेकर, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जितने एस्टिमेट्स की बात होती रहती है, ये उनके लिए एक बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि हम इस जगह पर अभी हैं, ठीक है, हम यहाँ पर स्थित हैं। जब हमने बजट बजट को जो है इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ, तो जब इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हो रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, फरवरी में जब इकोनॉमिक सर्वे हम रिलीज कर रहे हैं, तो हम किस ईयर के लिए जो है बजट एस्टिमेट कर रहे हैं? ऑब्वियसली बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन 2021-22 फरवरी में हम ऑलरेडी हैं, तो इस साल का थोड़ा एस्टिमेट करेंगे, बजट एस्टिमेट थोड़ा करेंगे। बजट किसके लिए बनाएंगे? अगले साल के लिए बन रहा है, तो बजट एस्टिमेट कम्स इन द फरवरी ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, सिंपल। तो 2021-22 में जहां की हम आज हैं, उसके फरवरी महीने में अगले साल का, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा, उस साल का बजट एस्टिमेट हमने अभी यहां पर दिया। तो किसी साल के बजट डॉक्यूमेंट में या इकोनॉमिक सर्वे में, जहां भी हम किसी भी जगह पर स्थित हो, अगले साल के लिए बात की जाती है, तभी तो हम बजट बनाते हैं। बजट का मतलब क्या होता है कि ये खर्चा कैसे होगा, ये इनकम कहां से आएगी, तो ये किसके बारे में बात की जा रही है? प्लानिंग, फ्यूचर के बारे में, बिल्कुल सही बात। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 2021-22 में जहां की हम हैं, हम 2022-23 का के बजट के एस्टिमेट्स की बात कर रहे हैं। नंबर 1, बजट एस्टिमेट्स, BE। नंबर 2, by the time we reach here, then do you not agree that the same process would have taken place for this year also? आप बात समझ रहे हैं? जो हम अगले साल के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं, जब हम यहां रहे होंगे, तब यही काम इस साल के लिए किया होगा। सिंपल सी बात है। तो इस साल के लिए जो बजट एस्टिमेट किया होगा, 2021 में 21-22 के लिए बजट एस्टिमेट किया होगा, वो अब जबकि हम यहाँ खड़े हैं, वहां आते आते थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा होगा। तो जो एस्टिमेट हमने किया था वो एकदम भाई प्योर गेस वर्क कह लीजिए, या थोड़ा सा जो है वो एक तरह से कंजेक्चर ही है। हमने अपने हिसाब से उसको एस्टिमेट किया कि ये होना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते जब आप फरवरी में पहुंच गए हैं, साल तो खत्म होने वाला है ना, 21-22 खत्म होने वाला, फरवरी पहुंच गया, मार्च का महीना बचा है कल इस समय। तो जब यहां पहुंच गए हैं, फरवरी मार्च ही बचा है, तो 10 महीना तो हो गया ना। इस 10 महीने में थोड़ा बहुत तो क्रिस्टलाइज होने लगेगा कि हमने वो एस्टिमेट ठीक किया था कि नहीं, इसके बारे में कुछ चीजें पता चलने लगेंगी, कुछ डेटा रिवाइज कर समझ में आएगा कि नहीं ऐसा हो गया। तो इस पॉइंट पर आते आते ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट पे आते आते जो पहले बजट एस्टिमेट था इस करंट ईयर का जो चल रहा है, वो यहां आते आते बहुत सारी चीजें उसमें रिवाइज हो चुकी हैं। तो दैट विल बी द रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर 21-22, ठीक है। बजट इसको 21-22 पढ़िएगा, ये शायद मिस्टेक रही है। तो ये बजट एस्टिमेट जो है, इसके लिए जो इसके पहले साल में किया गया था, वो अब आते आते समय बीतते रिवाइज्ड एस्टिमेट हो चुका है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी हैज गॉट इट दैट दिस विल बिकम द रिवाइज्ड एस्टिमेट। इसको 21-22 समझ लीजिए, दैट्स ऑल, द कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, अच्छा, तो रिवाइज एस्टिमेट ये हो गया पूरे साल का। इससे ठीक पहले अभी ही बता देना, चलिए एक एक करके बताएं। अब तो इस साल का, जल्दी सुनिए बात को ध्यान से, बहुत आसानी से, जो साल आने वाला है उसका बजट एस्टिमेट, जो साल चल रहा है उसका अब हम रिवाइज्ड एस्टिमेट जान सकते हैं।
दो हो गए। तीसरा, जो उससे पहले का साल है, जिसके रिवाइज एस्टिमेट की हम बात कर रहे हैं, उससे भी पहले का जो साल है, उसका एस्टिमेट अब प्रोविजनल हो चुका है। अब थोड़ा बहुत ही बस उसमें फाइनल करना बाकी है। प्रोविजनली हम कह सकते हैं कि अब एकदम मतलब ज्यादातर चीजें जो है ठीक हो गई है, बस थोड़ा सा ट्वीक करेंगे तो एक्चुअल हो जाएगा। और उससे पहले साल का एक्चुअल हो चुका है। इज दिस अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही आसान। जिस साल में बजट प्रेजेंट किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है या बजट प्रेजेंट होता है, वो अब उससे अगले साल के लिए बजट एस्टिमेट्स देता है और अपने खुद के लिए यानी इस साल के लिए रिवाइज एस्टिमेट्स देता है। उससे ठीक पहले वाले साल के लिए प्रोविजनल एस्टिमेट्स देता है और उससे भी पहले के साल का एक्चुअल डेटा आ चुका होता है। मुझे लगता है कि बहुत आसान सी चीज है, इतने में आपको क्लियर हो गया होगा। यस, I'm judging it from the response in the chat box. I think this is fairly clear to everyone. Certain new practices have evolved. Okay, now since 2016, I believe, another concept has come into place that is called first advanced estimate. हम अभी फरवरी की बात कर रहे हैं ना, जितना भी अभी तक हमने सीखा वो फरवरी के मंथ के पर खड़े हैं तब की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे एक महीना पहले प्रैक्टिस है कि जनवरी के पहला वीक खत्म होने, पहले वीक के आखिरी दिन, जब फर्स्ट वीक खत्म हो जाता है जनवरी का, 7 जनवरी को इसी साल का जो साल चल रहा है, जिसका कि फरवरी में हमको क्या मिल जाता है, रिवाइज एस्टिमेट, ये सब बात हो चुकी है, उसी साल का 10 महीना ये जो पूरा हुआ है, 10 महीना जो हुआ है, उसका जल्दी से थोड़ा एक्सेलरेटेड प्रोसेस से हम फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट निकाल देते हैं। ये प्रैक्टिस अब चालू हुई, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। लेट मी टेल यू, आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि जब रिवाइज एस्टिमेट आ ही रहा है तो फिर इसके लिए काहे वो किए जा रहे हैं, इतना परेशानी की क्या बात है, और ये कैसे आज फिर इन दोनों में कोई अंतर आएगा तो क्या होगा, फिर इसकी क्या आवश्यकता है अगर ये आने वाला है, या फिर इसकी क्या आवश्यकता रहेगी अगर ये आ चुका है। Please understand these two represent different species, completely different sets of data arrived in different manners. That's very important for you. Okay? ये दोनों का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट मैनर्स में अराइव होती है, ये रिजल्ट आता है। फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट जो होते हैं वो सिर्फ गुणा भाग का खेल है, याद रखिएगा इस चीज। वो नेसेसरली रियल डेटा को रिप्रेजेंट करने जरूरी नहीं, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत रियलिटी से रिलेटेड है और रियल डेटा को करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन होता है, क्योंकि सरकार को जनवरी के महीने में जान लेना होता है कि हमारे 10 महीने में क्या हुआ है, और अब जब हम 1 महीना बाद बजट लाने वाले हैं, इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होने वाला है या बजट लाने वाले हैं, उससे कुछ तो आइडिया लग जाए। थोड़ा सा पहले 1 महीने का टाइम दिया है। इज दैट मेकिंग सेंस टू यू? ओके, हमारा उतना करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो पूरी तरह से कैलकुलेशन बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रापोलेशन होता है इसमें कि इतना हो रहा है तो इतने फैक्टर से गुणा कर दो, कि इतना जब पिछले साल इतना बढ़ा था तो इस साल भी इतना बढ़ेगा, थिंग्स लाइक दैट। प्योरली मैथमेटिकल, प्योरली एम्पिरिकल, इसका रियल इकोनॉमी से डायरेक्ट जुड़ा हो ये जरूरी नहीं है। तो लेकिन वो अपना जो कहते हैं ना, जो उसकी भूमिका है वो अदा कर जाता है, उसकी भूमिका जो है वो अदा कर जाता है। उसका काम यह है कि 1 महीना पहले हल्का सा आइडिया दे दे सरकार को कि आगे जो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, स्पेशली बजट मेकिंग प्रोसेस है, उसके लिए सरकार को थोड़ा सा तो आइडिया ही जाना चाहिए। ओके, हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट, आई विल रिपीट इट। यस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। Do I presume that other things you have understood? That in February we have presented budget estimate for the next year. We will get revised estimate for the current year, and we will get provisional estimates for the previous year, and we will get actuals for the previous to previous year. I think this is clear. Now what we are talking about is only one thing, and that is a new practice that has come into being, and that is, my dear friends, first advanced estimates. फिर सेकंड भी आता है, सेकंड एडवांस, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स, फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, इस साल के बारे में अभी तक कोई भी, इससे पहले कोई भी एस्टिमेट नहीं किया गया है, इसीलिए ये फर्स्ट है। क्योंकि ये सब चीज तो इधर यहां पता चलती है, फरवरी के इधर, ये तो हम जनवरी में ही किए डाल रहे हैं ना, दैट इज व्हाई इट विल बी फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब समझ गए। अब एडवांस्ड, एडवांस क्या है कि ऑब्वियसली हम इसको सिर्फ मैथमेटिकल
प्रोजेक्शन के आधार पर कि पिछले से पिछले साल में इतने गुना बढ़ा था ये चीज, तो इस साल भाई इतना बढ़ने की उम्मीद है। हमने बजट एस्टिमेट तो ये किया था कि 100 रुपया होगा, लेकिन अगर ट्रेंड को देखा जाए तो इस 10 महीने में अगर इतना हुआ है तो बाकी के 3 महीने में कितना होगा, बाकी का जो 2 महीना बचा है उसमें कितना होगा, तो इतने इतने इंटू 1.3 या वॉट एवर, जिसे कहते हैं सिर्फ आनुपातिक एक गणना होती है, और इसीलिए इसको एडवांस एस्टिमेट कहते हैं, क्योंकि अभी तो साल खत्म ही नहीं हुआ है ना, आप पूरे साल का एस्टिमेट तो लगा नहीं रहे हैं, ये तो सिर्फ मियर प्रोजेक्शन है आपका। आप तो अभी जनवरी में है, फर्स्ट वीक में है जनवरी के, अभी जनवरी फरवरी मार्च होगा तब पूरा साल पूरा होगा। So even if you estimate, it will be an advance estimate because you are estimating in advance. The year is yet to finish. Is that understood? So first, because it is the first attempt to make an estimate about 21-22 after the budget estimate. इसका जो ओरिजिनल बजट एस्टिमेट था उसके बाद अभी तक कोई इस प्रयास नहीं हुआ है ये जानने के लिए किधर जा रहा है भैया गाड़ी, किस तरफ जा रहे हैं। ओके, इसलिए फर्स्ट, और क्योंकि साल खत्म होने में भी अभी 3 महीना पूरा क्वार्टर समझिए बाकी है और तभी एस्टिमेट कर लिए, इसलिए एडवांस। इज दैट अंडरस्टूड नाउ टू एवरीवन? ये टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। कोई ऐसे फंसाना चाहे तो इस चीज को याद रखिएगा, ये कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोविजनल एस्टिमेट्स में कंफ्यूज होगा। याद रखें सिर्फ प्रोविजनल एस्टिमेट वह एस्टिमेट है जो साल के फिनिश हो जाने के बाद 2 महीने बाद आता है, ठीक, ये बस इतना याद रखिएगा। साल वो फिनिश हो चुका होगा, 2020-21 फिनिश हो चुका है, फरवरी मार्च, नया साल शुरू हो गया अप्रैल, फिर आया मई, नए साल का मई, उस मई के महीने में इस साल का प्रोविजनल एस्टिमेट आ जाता है, ठीक। तो वो प्रोसेस चलती रहेगी, सोच के देखो, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आएगा किसी भी साल में, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, फिर रिवाइज एस्टिमेट, फिर प्रोविजनल एस्टिमेट और फिर एक्चुअल आ जाएगा। ये पूरी साइकिल क्लियर हो जानी चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। आई एम प्रिज्यूमिंग दैट दिस इज अंडरस्टूड। इसमें तो ये तो बेसिक है एक्चुअली, ये यू शुड हैव नोन ऑलरेडी, आई शुड बी रिक्वायर्ड टू डू दैट। तो ये जब बेसिक्स अब आप समझ चुके हैं तब आप वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाइए कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस एंटायर डॉक्यूमेंट। जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें 1 चैप्टर 2 चैप्टर सब 4 चैप्टर लिखा हुआ, अब आप उसको आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं। हम लोग जितना पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से अब आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये चैप्टर इस पर लिखा गया है, ये चैप्टर इकोनॉमी के इस हिस्से पे लिखा गया है। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। बट लेट अस जस्ट रिवाइज एंड रिविजिट दोस कॉन्सेप्ट्स वेरी क्विकली एंड सी वेदर देयर इज वन टू वन कनेक्शन। जो हमने पढ़ा और इकोनॉमी के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनमें और इकोनॉमिक सर्वे में क्या 1 to 1 कनेक्शन है, एक प्रोसेस की तरह, ठीक है। टुकड़े टुकड़े में थोड़े पढ़ना है आपको कि ये चैप्टर ये रट लो वो रट लो, नहीं। जो इकोनॉमी की पूरी प्रोसेस होती है ना, जो प्रोसेस हमने पढ़ी है कि एक लोग होते हैं, मार्केट बनाते हैं, मार्केट इवॉल्व करता है, फिर गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है जरूरत पड़ने पे, प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, डिमांड सप्लाई सेक्टर्स बन जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। ये पूरी प्रोसेस जो है उससे सीधे सीधे इकोनॉमिक सर्वे कोरिलेट होना चाहिए ना, बिकॉज इट इज अबाउट अ रियल इकोनॉमी, इजंट इट? द इकोनॉमिक सर्वे इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ रियल इकोनॉमी। So whatever we have understood in theory, that should practically be visible here in the economic survey. So let us see whether it is visible. Does everyone understand this very clearly? That in any economy there will be 3 principal domains. One will be the government, the second will be the household sector, and the third will be firms. We already know that. And the 4th sector, which is not visible here, obviously, because this is a closed economy model. The 4th sector will be external sector, always it will be there. Yes, of course it will be there. तो external sector अभी दिमाग में रखिए, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यही तीनों का आपस में इंटरेक्शन होता है, और ये इंटरेक्शन कैसा होता है, घूम घुमा के हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स, दे वर्क अपॉन व्हाट, दे वर्क अपॉन what we call the factors of production. Everybody now knows it very clearly that there are principally 3 factors of production conventionally: land, labor, and capital. But the modern economic thought says that yes, of course, human capital is also one of the important factors of production or output. 4 मान के चलिए हम अपनी समझ के लिए। तो हाउस होल्ड और फर्म्स ये कंज्यूम करेंगे, यही पैसा लगाएंगे,
फर्म से प्रोडक्शन होगा, ये कंज्यूम करेंगे, यही पैसा लगाएंगे, दिस साइकिल विल गो ऑन, ओके, एवरीबॉडी एग्रीज, एंड वेयरएवर नेसेसरी द गवर्नमेंट विल स्टेप इन। यही इकोनॉमी का मॉडल है, सिंपल सा हमारे लिए, हम लोग ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, तो उसके अनुसार, ठीक है। ये चार जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन पे ही ये तीनों, तीन ये चार ये, इनके ये आपस के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रही है, इसको कर रही है, इसको, ऐसे ही होगा। आप देखिए घूम घुमा के सारा इसी में गेम होगा, ठीक है। हाउस होल्ड में इसका इन्वॉल्वमेंट हो गया, फर्म्स का इन्वॉल्वमेंट हो, तो एक तरफ तीन, एक तरफ चार लिख दीजिए, फिर जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सब लगाए। अल्टीमेटली होगा क्या कि इन फैक्टर्स, हम क्या इनका नाम दिया हमने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी आउटपुट के काम आते हैं, चाहे गुड्स हो, सर्विसेज हो, व्हाटएवर, उनके आउटपुट के काम आना है इनको, ओके फाइन, दैट्स ऑलराइट। लेकिन किसके थ्रू, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम किसके थ्रू करते हैं, एक कंड्यूट जैसी है, ठीक है, एक पाइप है, उस पाइप में इन सब पड़ते हैं अलग अलग प्रोपोर्शन में, जैसा आउटपुट चाहिए हो। लेकिन वो पाइप किस चीज का बना हुआ है, वो रास्ता किस चीज का बना हुआ है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब अपना इफेक्ट दिखा सके और इनपुट जो है वो आउटपुट में बदल सके, इसके लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, यस पड़ेगी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, यस बिल्कुल, हम एक सोसाइटी में इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, इसके कई मीनिंग्स हैं, अभी उस पर नहीं जाते। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, यस ऑफ कोर्स। कैपिटल, इसका भेंट इससे कैसे होगा, इसका भेंट इससे कैसे होगा, इनका इनसे भेंट कैसे होगा, इनका इनसे आपस में मुलाकात कैसे होगी, a marketplace is required or not. So financial infrastructure in the economy, physical infrastructure in the economy, ये सब मिलकर काम करते हैं और तब इनके थ्रू इस तरह के सेक्टर्स इवॉल्व होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, और जो बोला था आपसे कि एक्सटर्नल सेक्टर दिमाग में रख के चलिए। ये तीन प्राइमरी सेक्टर्स इकोनॉमी के होते हैं, जिनमें अल्टीमेटली यही लोग घूम घुमा के अलग अलग तरीके से अपना प्रभाव दिखाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करती है। घूम घुमा के बात इतनी सी है। और ये सब क्यों हो रहा है, इतना सारा इकोनॉमी में सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि अल्टीमेटली द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग व्हाट, ऑल दिस इज हैपनिंग फॉर व्हाट, डायरेक्शनैलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि ये सब हो रहा है ऐसे ऐसे ही थोड़ा है। हम तो जानते ही हैं कि एक दिशा होनी चाहिए, अगर अर्थव्यवस्था की एक दिशा होनी चाहिए, उसके कुछ जो है लक्ष्य होने चाहिए, कुछ उद्देश्य होने चाहिए जिनकी आपूर्ति के लिए वो ये काम कर रहे हैं। तो व्हाट इज दैट अल्टीमेट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं कि जितना अभी तक कहा गया वो कॉमन सेंस है, इसमें कोई इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई कुल मिलाकर गवर्नमेंट, फर्म्स और हाउस होल्ड ये मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हो गए, एक तरह से कह लीजिए। मार्केट में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन एक्सचेंज किस चीज का होगा, कौन सी चीज पर काम करेंगे, पार्टिसिपेट करने के बाद क्या करेंगे। खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, तो कुछ डायस चाहिए ना घुमाने को, गोटी चाहिए ना चलने, तो वो क्या है। चेस अगर खेल रहे हैं तो प्यादे मोहरे सब कौन से हैं, तो वो ये है, लैंड, लेबर कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। अच्छा, अगर ऐसा है तो उसके लिए चेस बोर्ड भी तो चाहिए जिसपे ये गोटी चल सके, लूडो का जो लूडो का बोर्ड भी तो चाहिए, तो वो बोर्ड क्या है, ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली उससे होता क्या है, अल्टीमेटली वो किन सेक्टर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज और एक्सटर्नल सेक्टर, कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली आदमी जीतने के लिए या जिस चीज के लिए भी लूडो खेल रहा है या चेस खेल रहा है, वो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही सारा काम हो रहा है। तो अब क्या ये बात मानते हो कि अगर इकोनॉमिक सर्वे वाकई इंडियन इकोनॉमी का एक दर्पण है, एक मिरर है, रिफ्लेक्टिव है, तो फिर ये सारे उसमें आ जाने चाहिए। एवरीबॉडी एग्रीज दिस कि इसके सबके बारे में भाई बात होनी चाहिए उसमें, और इन्हीं के बारे में बात होनी चाहिए, और किसके बारे में। तो लेट अस सी, अगर ऐसा है तो भी पता चल जाएगा, और नहीं है तो भी वही वाला डायग्राम है। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 2 इकोनॉमिक सर्वे का किसके बारे में, फिजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में। इतना तो जानते ही होंगे, जीएस की तैयारी करते हो, यूएस यूपीएससी का या जिसका भी स्टेट कंपनी। चैप्टर 2 फिजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में। फिजिकल मतलब क्या हुआ, वो पहला वाला, सरकार से संबंधित इकोनॉमी में जितनी बातचीत है, सरकार का रोल से संबंधित, व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, उससे संबंधित जितनी बातचीत है वो इस चैप्टर में होगी। हो गई, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ,
सोशल सेक्टर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, हेल्थ सेक्टर और कोविड से, ये स्पेशल रेटिंग है। ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, रूरल डेवलपमेंट, यही सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। कौन से चैप्टर में है? चैप्टर 10 में दिया हुआ है। सिंपल। ठीक, आगे बढ़ लो। ये क्या है? फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? वो संरचना जिसके थ्रू मनी जो है, धन का बहाव हो सके। ठीक है, मनी जिसके थ्रू फ्लो कर, यही तो है मॉनिटरी, बोलते हैं ना मॉनिटरी पॉलिसी। यही तो हम सीखते हैं कि ट्रांसमिशन हो जिससे मनी का। तो वो कहां दिया हुआ है? फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉनिटरी डेवलपमेंट, लिक्विडिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंकिंग सेक्टर, मॉनिटरी ट्रांसमिशन, एनबीएफसी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बेंचमार्क, इंश्योरेंस, पेंशन, इंसॉल्वेंसी, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, ये सब उसी से रिलेटेड है। मनी जो धन की गति है, एक अर्थव्यवस्था में धन की क्या गति और नियति है, उसकी दशा और उसकी दिशा, इससे संबंधित जितना भी कुछ है वो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में दिया हो। फाइनेंशियल सेक्टर वहां कवर हो जा रहा है। व्हाट एल्स? अब बचे ये 4 सेक्टर, तो इनके बारे में भी होना चाहिए। हाँ, है ना। चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 3, क्रम कुछ भी हो सकता है उनका, लेकिन इनके बारे में बात हो जानी चाहिए कुल मिला के बात ये। और हमने कहा था कि इन सब का अल्टीमेट गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और वो भी चैप्टर 6 में दिया हुआ है। कैन वी नाउ से दैट यस, इकोनॉमिक सर्वे truly represents the structure, function and purpose of Indian economy, because this conforms to the principles which we have learned even when we did not know that economic survey would be actually exact reflective of what we are studying. हम माइक्रो इकोनॉमिक से शुरू किए, माइक्रो इकोनॉमी पर आए धीरे धीरे, लेकिन देखिए आप घूम घुमा के सारी बातें एक के ऊपर एक बैठती चली जा रही। यस, इतने ही चैप्टर हैं भी घूम घुमा के, और सब कवर हो जा रहे हैं उसी फ्रेमवर्क में जो हमने आपने सीखा है साथ में। Is that understood? This process till now you are clear? Please respond so that I know. I think it should be fairly clear. So we are not elaborating on each of them because we'll do it as we progress. हाँ, so now what you see, this is the introductory part. ठीक है, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओवरव्यू, एक ओवरव्यू जान लीजिए, लेकिन ओवरव्यू से पहले यू शुड नो व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। ये बात ध्यान रखिए, अगर आप सही सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में या इकोनॉमी के बारे में, देन जो है फिर आप सही जवाब भी नहीं दे पाएंगे, एज सिंपल एज। तो मेरी प्रिजम्पशन ये है कि आप ये जानते हैं, और इसलिए हम आपको ये बता सकते हैं। आपकी तैयारी इतनी है, इसलिए हम अब इस पर बात कर सकते हैं। ये इसका स्कीम जो हमने बनाया है, ठीक है, आप समझिए इस बात को। जैसे पहला जो स्लाइड दिया इकोनॉमी सर्वे में, जो पहली चीज दी है ओवरव्यू के नाम पे, वो क्या है कि जीडीपी ग्रोथ कैसी रही है। कैसी रही जीडीपी ग्रोथ 19-20 में? अब देखिए जो हमने पढ़ा है वो भी देखिए आ जा रहा है। 19-20 में कोई निशान लगा है नहीं? देखिए जरा, अनक्वालिफाइड है ना। 1920 का जो डेटा है 4%, वो अनक्वालिफाइड है। जबकि ये देखिए 2021 में ये स्टार मार्क लगा हुआ दिख रहा है, स्टार मार्क, ठीक। और स्टार मार्क का इंटरप्रिटेशन क्या है? प्रोविजनल एस्टिमेट। समझ गए बात? कहे थे ना हम कि अगर हम यहां खड़े हैं, इस वाले साल का बजट एस्टिमेट प्रोजेक्शन कर रहे हैं, देखो प्रोजेक्शन, अगर इस साल में है, अगले साल का प्रोजेक्शन कर रहे हैं, उस साल का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट होगा, ठीक है, और उससे पहले साल का प्रोविजनल एस्टिमेट और इसका एक्चुअल आ चुका होगा। यही तो अभी बात की थी, सिंपल। तो 19-20 का एक्चुअल डेटा है, 20-21 का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट कह लीजिए, उसके आगे चले जाइए 20-21 का प्रोविजनल एस्टिमेट हो गया, 19-20 का एक्चुअल, इसका फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट और इसका प्रोजेक्ट जो हमने पढ़ा वो आपके सामने। खैर वापस आइए कि हम ये क्या बात कर रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ है कांस्टेंट प्राइसेस परसेंटेज, कैसे रहा है जर्नी? तो भाई ऐसा रहा है, 4, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपेंशन, और आगे के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि 8 से 8.5 के बीच रहना चाहिए। लेकिन इस डेटा का क्या मतलब है अगर आप ये नहीं जानते हैं? क्या नहीं जानते हैं? अगर हमारी आप अभी तक की पढ़ाई से आपको ये मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? व्हाट इज जीडीपी, हु एस्टिमेट्स इट, हाउ इज इट एस्टिमेटेड, व्हाट इज नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर, दोनों में से कौन सा बेटर एक मेजर है? व्हाट इज द बेस इफेक्ट, बेस इफेक्ट कैसे कहते हैं, किसको कहते हैं? कि भाई जब 3.5-7% कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके तुलना में 10%, 9% बढ़ गया, तो कौन सी बड़ी बात हुई? 9% पे फिर
जब ऑलरेडी बड़ा है उसको वो बड़ा हो तो ठीक है, जो नेगेटिव में चल रहा है उससे पॉजिटिव में आ जाएगा, इसको बेस इफेक्ट कहते हैं। ये इसको इसके भुलावे में मत जाइए कि 9% हो गया, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि 9% दिख रहा है तो बहुत बड़ा नहीं मानिए, क्योंकि उससे पहले का बेस छोटा है, -7.3, इसलिए ये इतना बड़ा दिख रहा है। थिंग्स लाइक दैट, जो क्रिटिक्स हैं वो ऐसा कहते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको आता है, तब बस सवाल उठता है कि आप क्वेश्चन पूछना शुरू करिए सही से, कि व्हाट आर द assumptions behind दिस प्रोजेक्शंस। ये प्रोजेक्शन जो कीजिए, इसमें प्रोजेक्शन क्या है, इसमें प्रोजेक्शन क्या है? ये एक्चुअल है, फोर है, 4 वाला ही एक्चुअल है ना, बाकी सब तो एक तरह से एस्टिमेट्स और प्रोजेक्शन ही है ना। तो कहने का अर्थ है, मैं जब बात हो रही है अभी इकोनॉमिक सर्वे 21-22 की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जो मुख्य मुद्दा वो क्या है, जिसके बारे में हम पूरी तरह से बस गेस ही लगा रहे हैं, तो वो कौन सा साल है जिसके बारे में पूरी तरह से गेस किया जा रहा है? 22-23, एब्सोल्युटली द नेक्स्ट ईयर। तो ये जो नेक्स्ट ईयर है उसके, और या करंट ईयर भी रख लीजिए, चलिए करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका जो प्रोजेक्शन है, उस प्रोजेक्शन के बेसिस क्या बेसिस है? वो कहे, मान लीजिए इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 8 से 8.5 के बीच ग्रोथ होनी चाहिए हमारी, लेकिन कब? अगर ये सब ठीक रहा तब। क्या है वो? यानी कंडीशनैलिटीज, कंटिजेंसीज क्या है? अगर पैंडेमिक डिसरप्शन फिर से ना हो जाए वैसा, जो इकोनॉमी को इस तरह से सीवियरली इफेक्ट करे, नंबर 1। नंबर 2, अगर मॉनसून नॉर्मल रह जाए। नंबर 3, ग्लोबल लिक्विडिटी का ऑर्डरली विड्रॉल। ये क्या होता है भाई ऑर्डरली विड्रॉल? मतलब लिक्विडिटी ग्लोबल, ये सब क्या बात हो रही है? बहुत सिंपल शब्दों में समझ लीजिए। जब क्राइसिस सिचुएशन आई थी तो मॉनिटरी इंटरवेंशंस किए गए थे कि नहीं, कि लोगों के हाथ में पैसा दो भाई, लोगों के हाथ में पैसा दो ताकि लोग जो कंजम्पशन बढ़े, डिमांड बढ़े, ये हुआ था ना। तो पैसा दो का मतलब क्या हुआ? कहां से दो? मॉनिटरी पॉलिसी से ही तो। मनी का सप्लाई कौन गवर्न करता है? इंडिया का एग्जांपल लीजिए, भारत का आरबीआई ना, मॉनिटरी पॉलिसी उसे गवर्न करती है। तो ये हुआ कि अरे तो स्लो डाउन हो गया, एकदम हालत खराब है सर, तो मनी इंजेक्ट कीजिए भाई, मनी इंजेक्ट कीजिए। एक्सपेंशनरी फिस्कल मॉनिटरी पॉलिसी, अब तो ये सब आपको भाई मालूम होना चाहिए, नहीं तो बेईमानी है फिर, सब तो पढ़ चुके हैं। एक्सपेंशनरी हम लोग मॉनिटरी पॉलिसी के लिए गए, पूरा ग्लोब गया, हम ही क्या पूरा विश्व गया उसके लिए। तो अब जब सिचुएशन सुधरती नजर आ रही तो सब लोग पैसा वापस खींचेगा कि नहीं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जो उस समय तो ठीक था, अब सप्लाई अगर ज्यादा बनी रहने देंगे और चीजें पिकअप कर गई हैं तो इन्फ्लेशन नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा क्या? इफ यू आर फॉलोइंग करंट अफेयर्स यू शुड नो दैट इट इज ऑलरेडी देयर, it has reappeared as a major crisis again before the World Forum. You should know that. तो अब उसके लिए धीरे धीरे सब लोग पैसा वापस खींचना शुरू करेगा कि अच्छा चलो पैंडेमिक तो गया, अब नाउ अगला पैंडेमिक इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन से बचने के लिए जो है वो सब कर लेगा पैसा, मनी सप्लाई। तो अगर ऐसा हुआ, मनी सप्लाई सब कर लेगा, तो कैपिटल कॉस्टली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मनी का सप्लाई कम हो गया तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी कि नहीं? न्यूज में सुनते होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है बॉन्ड मार्केट, अपने बॉन्ड मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाह रहा है, ये सब न्यूज सुनते होंगे। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? मतलब मनी सारे सेट कर लेंगे, तो सिंपल सी बात है कि मनी अगर मनी का सप्लाई कम हो जाएगा और अगर वो ऑर्डरली हुआ, धीरे 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 सिस्टमेटिकली हुआ, तब तो ठीक है। एकदम से अगर कहीं मनी सप्लाई ग्लोबल जो है वो तो उसका शॉक इंडिया पर भी पड़ेगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अभी के लिए इतना ही, ये तो बहुत इंट्रोडक्टरी है, इसको डिटेल में नहीं ले जाना चाहते। Do you understand this simple thing? That in the during the crisis of pandemic, global central banks, they went for injecting money to ease money supply, as we call it. Now, when the pandemic is over, then the next challenge is the inflation should be contained. In order to achieve that objective, they will gradually try to withdraw it. When they withdraw money, then it should not be sudden. Otherwise, the shock waves will not leave India also. Okay? ये हो गया। अगली बात कि ऑयल प्राइसेस अगर 70 से $75 पर बैरल रहे तो ये सब क्या है? वो कंडीशंस है जो हम मन में मान के चल रहे हैं कि ऐसा रहेगा भाई, तो हम 8 से 8.5% ग्रो कर जाएंगे। अंडरस्टूड? फिर क्या नेक्स्ट क्या है? डिसरप्टेड सप्लाई चेन्स विल रिज्यूम। इस पर आप जानते होंगे इस चीज को कि पैंडेमिक का सबसे मेजर जो मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट रहा है वो किस पॉइंट पे रहा है, कौन सी जगह पे? बीमार तो है लेकिन कहां दर्द हो रहा है जिसे कहते हैं
वो सप्लाई साइड। इस बार की जो चुनौती है वो क्या रही है, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की रही है। डिमांड साइड यानी सिर्फ पैसा दे देने से नहीं होगा, पैसा आप देते जाएंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट उस प्रोपोर्शन में नहीं अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि सब बंद है, लॉकडाउन हो गया। सीधा सीधा समझ में आ रहा है। तो इस बार इसीलिए जो है आपको सप्लाई साइड मेजर्स लेने पड़ेंगे। इसको जरा सवाल लेके आओ। ये क्या है क्वेश्चन, बताया क्या गया है कि हम 8% के आसपास का ग्रोथ कैसे प्राप्त करें। आप छोड़ो 8% छोड़ो। अब 8% की ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए ये क्या है, ये हमारे कंट्रोल में है नहीं है। पैंडेमिक हो गया, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, मानसून नॉर्मल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो ये क्या हो गया, ये दो हमारे हाथ में नहीं है, नेचुरल इशू, ठीक है। ये क्या है, हमारे हाथ में है। ये क्या हमारे हाथ में है, नहीं, ये इंटरनेशनल इशू है। ये हमारे हाथ में है, यस। अब इन चारों को देखिए, हमको ग्रोथ प्राप्त करने के लिए सर भगवान भी साथ दे, नेशनल इशू भी साथ दे, इंटरनेशनल इशू भी साथ दे। तो सपोज व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू हैव, सपोज द क्वेश्चन कमिंग इन योर इंटरव्यू कि हमको जो ग्रोथ प्राप्त नहीं हो रहा है, उस ग्रोथ को प्राप्त करने न करने में कौन कौन से तत्व कारक है। अगर ये मान लीजिए जो ये ओपेक कंट्रियां कंट्रोल करती है जनरली, ठीक है। अब ओपेक कंट्रियां क्या करती है, ये पेट्रोलियम के सप्लाई और प्रोडक्शन कंट्रोल करती है कि लोग क्या करते हैं कि आपस में प्रोडक्शन कम कर देंगे। जहां प्रोडक्शन कम करेंगे ये इफेक्टेड हो जाएगा। तो हमको 8% ग्रोथ प्राप्त करने के लिए हमको अपने अंदर की व्यवस्था विद ओन टेरिटरी हम क्या काम कर सकते हैं, हमको एक्सटर्नल कारक भी चाहिए। तो अब सवाल आप देखिए मेरे से क्या है कि व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर हैविंग द 8% ग्रोथ, what are the internal factors required for having the 8% growth, and what are the natural factors required for the 8% growth. So you try to see this question 3 format. Suppose you answering the question for the mains, so you try to have in mind, you have to write the natural reasons, we have to write the international reason, and we have to write the international reason. Now see on this, come on this. Suppose you are concerned on this. You see, just this also involve the internal affair. जो orderly withdrawal global liquidity है, why? Because of the globalization. और India is a very important partner in the world trade, world global system. India है, China है, अमेरिका है, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो पूरा का पूरा अपने हाथ में। तो जो सौर का ये पूरा ये बनाया हुआ जो चार्ट है, ये चार्ट क्या है, ये अगर इस चार्ट पे आप कंट्रोल कर लीजिए तो आप इंडिया के इन्फ्लेशन के, इंडिया जो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, एक आप बहुत सब सुनते हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, कैसे आएगा वो। देखिए ये जो चार्ट बनाया गया है, इस चार्ट में बहुत दिमाग लगाया गया है कि कैसे चार्ट से पूरा कंट्रोल किया था। नाउ यू गो come on the V-shaped recovery. अब देखिए इस सवाल को अब फिर यहां से कि V-shaped रिकवरी कैसे होगी और क्या V-shaped रिकवरी में इन कारणों का कोई कंट्रीब्यूशन है। और फिर V-shaped रिकवरी है कि S-shaped रिकवरी, क्या सोचने की कोशिश करिए। I hope you have immediately realized the importance of what sir has said. That now at least you have these things, they are conditionalities for the growth targets to be materialized. But these concepts, it is ultimately these concepts which will be useful for you if you note them down, understand them conceptually. Then these are the points which will ultimately be required by you answering any particular question on growth. घूम घुमा के एक बोलना है कि कौन कौन से मेजर, जो कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जो अर्थव्यवस्था को वोलाटाइल बनाए रखते हैं या अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है उसको कैसे डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, यही सब घूम के आए। तो दीज आर द कंडीशनलिटीज कि ये मान के चला जा रहा है कि अगर ये रहा, ये सारे ठीक रहे, ऐसे रहे जैसे हम सोच रहे हैं, तो 8 to 8.5% ग्रोथ हो जानी चाहिए। अब
एक पॉइंट ये भी है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछना चाहिए कि जो पिछले इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको एक बार दिखाया था, याद होगा, जब ये बात आई थी कि ये इस बार मेंस में क्वेश्चन आ गया था ना, ये वी शेप्ड वाला, एम आई राइट या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? इस बार शायद वी शेप्ड का क्वेश्चन आ गया था, तो हम लोग देखे थे कि आया कहां से, एंड देन वी इमीडिएटली फाउंड दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे. सो यू रिमेंबर दैट. तो द क्वेश्चन वाज कि वाकई क्या वी शेप्ड जो है रिकवरी हुई है? वी शेप्ड रिकवरी का अर्थ क्या हुआ? जल्दी से बताओ, क्योंकि यहाँ का टॉपिक नहीं है, तो सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ये सब सवाल आपको पूछने चाहिए अपने आप से कि भाई पहले गिरा था, अगर ये ग्राफ है तो पहले चीजें गिरी और फिर उठी, लेकिन अभी जब सेकंड वेव आ गई है, ये फर्स्ट वेव का डायनेमिक्स था, सेकंड वेव जब आ गई है तब क्या हो गया है? क्या हो गया है? ऐसा कुछ हो गया है. इसको भूल जाइए, पुराना वाला, नया वाला देखिए. समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड. व्हाई दिस पर्टिकुलर dip is because of what? Tell me. Please write in the chat box. This particular dip was because of what? The earlier one, yes, the first one, yes. And why it was so deep, and why the second one is shallow? Why it is called tilted W? This is the new term used. Tilted W. तो कहीं पूछ ले तो tilted मतलब थोड़ा टेढ़ा है, ऐसा है. This was because there was a lockdown. Now there was no lockdown. Even though this is the language that has been used there. Even though the health impact of the second wave was very severe, the economic impact of the second wave was not as severe. लो पता चला ऐसे ही लैंग्वेज में कहीं सवाल बना दिया. Please discuss, because these are the terms which have been used by the authorities. So please be very cautious about that. Okay. So this is called tilted W. But what I am talking about, तो ये तो ठीक है, सब्जेक्ट मैटर तो हम लोग डिस्कस करेंगे. This is not the scope of that discussion. The next thing that you should know is this K-shaped recovery. This is something that now increasingly being talked about. So you should know what is K-shaped recovery. तो K-shaped recovery क्या है? बहुत ही इजी सी चीज है कि जब रिकवरी हो रही है, अब एक कोऑर्डिनेट ये बना दीजिए, एक कोऑर्डिनेट ये बना दीजिए, ऐसे, ठीक है? एक कोऑर्डिनेट ये, एक कोऑर्डिनेट ये, ठीक. अब जब रिकवरी हो रही है तो देखने को क्या मिल रहा है कि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही है, तो जो अमीर है, यहां पर वो मार दीजिएगा, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं. दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड. देयर इज अ ग्रॉस राइज इन इनइक्वालिटीज. रिकवरी जिसका हम नाम दे रहे हैं रिकवरी, वो रिकवरी तो है, लेकिन सिर्फ टिल्टेड डब्ल्यू वाली रिकवरी पे मत जाइए, क्वांटिटेटिव रिकवरी पे मत जाइए, क्वालिटेटिव रिकवरी को भी देखिए कि रिकवरी तो हो रही है, लेकिन कौन रिकवर कर रहा है. अंडरस्टैंड माय पॉइंट? वी शेप्ड, डब्ल्यू शेप्ड, ये सब जो बातें हैं, ये क्वांटिटी ऑफ रिकवरी, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को दिखाता है कि रिकवरी हो रही है कि नहीं. हाँ हो रही है. जो ये के शेप्ड रिकर्व है, ये क्वालिटी दिखा रहा है कि रिकवरी इकोनॉमी के किस सेक्टर में हो रही है. तो कहा जा रहा है कि जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, और के का ऊपर वाला जो डंडा है उससे कहीं बड़ा है नीचे वाला डंडा. यानी 80% of the people are here who are getting poorer and poorer in this process of recovery. That's what is being said. In fact, there are certain surveys which have been quoted in some discussion I was viewing, and it has been said that it is now reported by many surveys that 85% of the people, they are facing extreme difficulties in maintaining their livelihoods and they are struggling for it. You understand this? ये है K-shaped recovery. हल्का हल्का बस जानते चलिए. देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, यहाँ पॉइंट आ गया पॉलिटिकल, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स का. सरकार का लक्ष्य क्या है? इनइक्वालिटी दूर करना. इफ यू सी, तो अगर के शेप रिकवरी हो रही तो सरकार फेल हो रही. जो एक घोषित लक्ष्य है सरकार का, वो सरकार अपने घोषित लक्ष्य में फेल हो रही, या सरकार को और करना, सरकार को बेहतर करना चाहिए. तो अब के शेप रिकवरी से आप सवाल बनाइए, यहीं से सवाल बनाइए अपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को मिक्स करके, कि जो हमारी के शेप रिकवरी है वह जो इनइक्वालिटी बढ़ा रही है, इट इज इंक्रीजिंग इक्वालिटी. व्हाट डज सिग्निफाइज? मीनिंग देयर बाय गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग. जो आज इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल एक्सक्लूजन आर्टिकल है, अलार्मिंग साइन ऑफ
रूरल वेजेस, बहुत अच्छा आर्टिकल है, पेज नंबर 3-4 पर देखिए। जो रूरल वेजेस क्या कहने की कोशिश की है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, उस इंडिया की पॉपुलेशन में जो रूरल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमी में, जो लगभग कम हो गया है। लेकिन जो रूरल वेजेस है वो नहीं बढ़ रहे हैं। अगर रूरल वेजेस नहीं बढ़ेंगे, वी आर नॉट एबल टू इंक्रीज द रूरल वेजेस, व्हाट इज मीन बाई कि हम अपने गांव के लोगों को पर्याप्त सहायता नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। रूरल वेजेस पे ध्यान देने की जरूरत है। अब फिर आप समझने की कोशिश करिए डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी कि इनइक्वालिटीज कैसे दूर हो। तो के शेप रिकवरी से सवाल क्या बन रहा है, आप इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जोड़ के देखिए कि चूंकि हमारा जो एक सेक्टर है अमीर, वो अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, और गरीब सेक्टर जो है बढ़ रहा है, तो सरकार को ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स लानी चाहिए। सरकार को वेलफेयर सेक्टर पे ज्यादा काम करना चाहिए। अब यहां से आप देखिए सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका परफॉर्मेंस का। अब यहां से आप मेंस का सवाल आप देखने की कोशिश करिए, के शेप रिकवरी से आप मेंस का सवाल देखिए कि वेलफेयर स्कीम बेहतर काम नहीं कर रही है। अगर के शेप रिकवरी हो रही है, इनइक्वालिटीज बढ़ रही है, हमारे संविधान का जो पार्ट 4 है उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, इट मींस आवर वेलफेयर स्कीम इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, देयर इज समथिंग, सम प्रॉब्लम इन आवर होल वेलफेयर स्कीम एंड आवर कॉन्सेप्ट एज द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बिल्कुल आप समझ गए होंगे इस चीज को। और इसी का दूसरा पक्ष, जब सर ने इतनी बढ़िया बात बताई, उसी का एक दूसरा पक्ष देखिए। सीधे सीधे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि कैसे जो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि रूरल वेजेस वाली जो बात कही, और उसी का एक दूसरा पहलू है, उसको जल्दी से जानते चलिए कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल इकोनॉमी में, वो धीरे 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 कम हुआ है। ये बात सही है, सब लोग जानते हैं इस चीज को कि धीरे धीरे पहले कितने % डिपेंडेंट थे, फिर ऐसे 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 हुआ। ठीक, उसका जो कंपोजिशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रीब्यूशन है जो इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी में, वो कम हुआ है। लेकिन जिस रेट से ये कम हुआ है, ध्यान से सुनो हमारी इस बात को और समझो कि जिस दर से एग्रीकल्चर का पूरे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, उसी दर से एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड लोग भी तो शिफ्ट हो जाने चाहिए दूसरे सेक्टर्स में। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं? अगर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है लेकिन उस पर डिपेंडेंस अभी भी लोगों की बनी हुई है, तो हालत डिस्ट्रेस, रूरल डिस्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। यस, सो it should be commensurate. There should be shifting of employment from a sector that is contracting. The employment should then shift to the sector that is expanding to maintain the balance, employment elasticity as we call it, isn't it? But if that does not happen, then there will be rural distress. People will be unemployed, underemployed. Many sort of things will happen there. Understood? तो ये अगर इस तरह की चीज होती है, इस तरह की बात अगर जारी रहती है बहुत समय तक, तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन क्या खड़ा होगा? वो ये क्वेश्चन ये खड़ा होगा कि जो लोग इसके रूट कॉज क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है जो स्किलफुल नहीं भी हो तो चलता है। ठीक है, तो पॉलिसी मेजर ये क्या वाई फर्स्ट एई फॉर 21-22, ये अभी तो हम दूसरी बात कर रहे हैं ना यार आदित्य, ये बीच में कैसे सवाल आ गया? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज क्लैरिफाई। That's fine, yeah, that's fine. It must be in deep chat, but now when we are in a different flow, then that question should not be popped. Okay, so we were talking about that. What is the reason then? Okay, we can say that rural distress जो है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो शिफ्ट नहीं हुआ है, उतने ही लोग अभी भी उस पर निर्भर बने हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि स्किल का जो लेवल है जो दूसरे सेक्टर्स में चाहिए, वो उस पॉपुलेशन में जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हमारे लोग हैं, उतनी तेजी से स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए वो शिफ्ट चाहे भी तो कहां जाएंगे, उनको क्या नौकरी मिलेगी बाहर? दैट्स वन एस्पेक्ट। ठीक है, इस चीज को समझते चलो। अब आदित्य के सवाल का जवाब देते हैं कि क्या हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट डज ही वांट टू नो। इसकी ही शायद तुम बात कर रहे होगे, आई थिंक।
कि 2021-22 का एडवांस एस्टिमेट क्यों है ये, दैट इज योर क्वेश्चन। प्लीज मैं चैट बॉक्स वापस देख ही लेता हूँ तुमने क्या पूछा है एग्जैक्टली। वाई फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, वाई शुड इट बी आरी भाई? आरी क्यों होगा? आरी तो पिछले साल का होगा ना, जो करेंट ईयर चल रहा है उसी का एडवांस्ड एस्टिमेट लेंगे ना, तभी तो एडवांस्ड है वो। जो साल खत्म हो गया है उसका एडवांस क्यों लेंगे? प्लीज समझो। तुम्हारा दूसरा पॉइंट क्या है? वाई इट शुड बी आर यू? अरे सिंपल सी बात है, देखो ना, इसको फिर चाटो तुरंत ही सब लोग भूल गए क्या? ये देखो ना भाई, आर ही तो होता है, ये कौन मना कर रहा है भाई? सबको क्लियर हुआ कि नहीं बता दे रहे हैं इस डिस्कशन के बाद। इस साल 21-22 का आर ई तो आएगा ही फरवरी में, लेकिन अगर जनवरी में ही वही काम करने लगा जाए तो एडवांस एस्टिमेट नहीं हो जाएगा? थिंक अबाउट इट एंड टेल। बताइए मैं आदित्य, ठीक लग रहा है कि अगर वही प्रोसेस जो, लेकिन वही प्रोसेस नहीं, मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता, और कंसेप्चुअली ये वही प्रोसेस नहीं है। न केवल इसकी टाइमिंग अलग है, न केवल ये जनवरी में ही हो जाता है, द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन एंड अराइविंग एट दिस फिगर इज ऑल्सो डिफरेंट। बस मैं ये चाहता हूं कि ये तुम्हारे दिमाग में रहे कि वो एडवांस्ड एस्टिमेट है और पूरी तरह से एस्टिमेट ही है, वो एम्पिरिकल कैलकुलेशन पर बेस्ड है। फीडबैक, जो जिसे फीडबैक कहते हैं इकोनॉमी का, उसको मत समझ लेना कि ये फीडबैक पर बेस्ड है। आर ई जो आएगा वो फीडबैक पर बेस्ड होगा, बिल्कुल सही बात। अच्छा हुआ कई बार, लेकिन बस थोड़ा फ्लो का कई बार दाहिने बाएं हो जाता है। मैं समझा कि ऐसे कैसे एकदम से बीच में आ गया, बाकी ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए आप? मुझे लगता है अभी भी नहीं, सौम्य बोलते हैं गेटिंग कंफ्यूज। फिर से बता देता हूं, नहीं अभी क्लियर हुआ कि नहीं? सौम्या, यू हैव टू टेल, you can say FA is advance estimate for next 2 months of the current year. Why would we say that? No, we will not say that. पूरे साल का ही है या नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट 2 मंथ्स बीतने के पहले ही किया जा रहा है, इसलिए एडवांस एस्टिमेट है, ये ठीक है, लेकिन 2 महीने के लिए है, नो दैट्स इनकरेक्ट। इट इज फॉर द एंटायर ईयर। ओके, नहीं समझ में आया सौम्या? बहुत सिंपल सी बात, समझ लो। अब फिर से एक बार लास्ट बता देते हैं, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर घबराना मत कभी भी आगे, ठीक है? देखो सिंपल सी बात है, हम इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं अभी, और हम कहते हैं कि हम अगले साल के लिए ये बजट एस्टिमेट रख रहे हैं, ठीक? ये हो गया बजट एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। और हम किस साल में हैं अभी? इस साल में खड़े हैं, ये देखो ऐसे खड़े हैं, इस साल यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। ओके भाई, ठीक है। कहां पर? फरवरी के महीने में खड़े हैं, ठीक है, फरवरी के महीने। फरवरी के महीने में हम पार्लियामेंट में कहते हैं कि ये है बजट एस्टिमेट अगले साल का। तो इस साइड को लेकर कोई दिक्कत है सौम्या? इस साइड को लेकर कोई प्रॉब्लम? इज इट क्लियर सौम्या? फॉर दिस साइड वेरी वेरी, हाँ, नो प्रॉब्लम, ओके फाइन। अब इस साइड में आते हैं, जो करंट ईयर चल रहा है, ऐसे ही जैसे हम इस साल के लिए कर रहे हैं, वैसे ही इसके पहले साल, इस साल के लिए एस्टिमेट किया गया होगा। क्लियर है एकदम, ठीक? उसमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी अब आ चुकी होगी। कब आ चुकी होगी? जब हम यहां खड़े हैं फरवरी के महीने में और अगले साल का एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ये जो साल चल रहा है उसके 11 महीने बीत गए ना, ठीक? 11 महीने बीत गए लगभग। अप्रैल टू अप्रैल कैसे हुआ भाई? मैं अप्रैल टू अप्रैल कैसे हुआ भाई? तुम किसकी क्या कहना चाहे? अप्रैल टू मार्च कहो, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू फरवरी कहो, तो समझ में आवे कि यहाँ आते आते 11 महीने लगभग बीत गए। इस बजट एस्टिमेट को, जो कि ठीक इसी प्रोसेस के तहत पिछले साल किया गया था, उसमें थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आने लगेगी, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये रिवाइज्ड है, कि अब हमको बहुत सारी क्लैरिटी आ गई है। रिवाइज्ड एस्टिमेट, इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, ठीक? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन दोनों में। अगले साल का बजट एस्टिमेट और जो साल खुद चल रहा है, क्योंकि अब उसके 11 महीने जैसे बीत गए हैं, तो फिर ये इसका रिवाइज एस्टिमेट हो गया। दिस इज क्लियर? ओके, ठीक बात है। यहाँ पर इन दोनों को सील कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, कहते हैं लॉक कर दीजिए, ताला लगा दिया है, ठीक है भाई? अगर ये प्रोसेस यहाँ तक आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। कहा गया, लेकिन एक बात बताओ भाई, पहले बजट कब आता था?
पहले बजट कब आया करता था? फिर आस्तिक बोल रहा है इशू भी, हाँ इसमें मत कंफ्यूज होना, इसमें तो पहले ही बता चुके हैं भाई, ये गलत इल्जाम मत लगाना, ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ये टाइपिंग एरर, ये इसको 21-22 समझिए, हाँ सिंपल सी बात, ये तो बता चुके हैं उसी समय। इफ यू आर नॉट अटेंटिव देन दैट्स नॉट माय फॉल्ट। ठीक, यहां तक समझ गए? यहाँ तक कोई, ये बजट एस्टिमेट था जिसमें आप क्लैरिटी आ चुकी है, ये बजट एस्टिमेट है जिसका कुछ पता नहीं पूरी तरह से फ्यूचर के हवाले, इसमें क्लैरिटी आ चुकी है। आप नेक्स्ट स्टेप, इससे पहले का जो साल है वो अब इतनी क्लैरिटी आ चुकी है कि उसे प्रोविजनल डेटा कह सकते हैं, ये प्रोविजनल डेटा हो गया। अब इससे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, एक्चुअल हो जाएगा। इससे पहले वाले साल का तो सीधे सीधे एक्चुअल पता चल ही गया। यहां तक एट दिस टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज एवरीबॉडी क्लियर? जिस भी साल बजट प्रेजेंट हो रहा हो, ध्यान से सुनो मेरी लाइन, जिस साल बजट प्रेजेंट हो रहा हो वो बजट उसके अगले साल का होता है, और उस साल का रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है, उससे पहले साल का प्रोविजनल एस्टिमेट होता है, और उससे पहले के पहले साल का एक्चुअल आ चुका होता है। कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता, नहीं प्राइस, दैट शुड बी वेरी क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया? बस अब इसके बाद एक ही चीज तो जानना बाकी रह गया कि जो रिवाइज एस्टिमेट का वेट किया करते थे हम फरवरी तक कि रियल फीडबैक आए, रिवाइज एस्टिमेट पता चले भाई कि इस साल में हमने किया कैसा किया, उसकी बजाय एक स्पेशल फार्मूले के तहत, एक स्पेशल बेंचमार्किंग और फार्मूले के तहत एक एस्टिमेट और निकाल देते हैं जनवरी में ही कि भाई एक महीना पहले पता चल जाए तो बजट थोड़ा ठीक से बढ़िया से और बने, मतलब थोड़ा सा अपने बैक ऑफ द माइंड कुछ रहे। दैट इज फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट एंड दैट्स ऑल। It is called the first advance estimate because you are estimating for the entire year, but still about a quarter of the year is still left. उसके बारे में बस खाली गणित से लगाए दे रहे हो कि इतना तो हो ही जाएगा। That's why it is first advanced estimate. Is that understood now, Soumya? Tell me. अभी यही चीज वहां जाके नीचे एक्सट्रापोलेट करेंगे और बताना। अब चलते हैं इसी नॉलेज को, ये जो नॉलेज है इसको इसी पे लगाते हैं जो आपने स्लाइड देखी है। ये बताओ भाई, और समझ में आ जाए तो हम बहुत खुश होंगे कि भाई चलो कम से कम मेहनत सफल रही। हम कहाँ खड़े हैं? यहां। तो हम कहां पर बजट प्रेजेंट कर रहे हैं? इस जगह। तो इस जगह पे जब बजट प्रेजेंट कर रहे हैं तो किसके लिए? 22-23 के लिए। ये 22-23 क्या हुआ? पूरी तरह से बजट एस्टिमेट, पूरी तरह से बजट एस्टिमेट। हाँ हुआ, ये देखो लिखा है प्रोजेक्टेड, ये इसमें निशान लगा है, उसका एक्सप्लेनेशन है प्रोजेक्टेड, यानी पूरी तरह से बजट एस्टिमेट अगले साल का। क्लियर? ओके क्लियर। अब जब हम यहां पे खड़े हैं तो जो साल चल रहा है यानी 21-22 ही तो चल रहा है ना, अभी 21-22 चल रहा है ना, उस साल का 9.2 क्या हुआ? बताओ भाई 9.2 क्या हुआ 21-22 के लिए अगर देखा जाए तो? जनवरी में तो हुआ है अभी, फिर कब आ रहा है तुम लोग? यही दिक्कत है। अभी रिवाइज एस्टिमेट कहां आया है? जनवरी में अभी क्या 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 घटना हो चुकी होगी महीना भर पहले? FAE फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट हो गए ना अभी जनवरी में। आप पढ़े 7 जनवरी डाल के देखिए, सारा न्यूज़पेपर किस चीज से भरा हुआ है, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए 7 जनवरी। तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, जिसे एडवांस एस्टिमेट कहते हैं, वो इस साल के, देखो ऐसे इसी पे लिख देता हूं, समझ जाओ। इस साल का बजट एस्टिमेट, इस साल का एडवांस एस्टिमेट, और इस साल का क्या होगा? प्रोविजनल एस्टिमेट, और इस साल का एक्चुअल। इसमें कहां कोई दिक्कत है? इसमें एक ही चीज तो मिसिंग है, हम तुम्हारी बात सबकी समझ रहे हैं, एक ही चीज तो मिसिंग है। क्या मिसिंग है? कि सर इस साल का रिवाइज एस्टिमेट तो भी कहीं होना चाहिए। हाँ वो नहीं है, वो आएगा। आप समझ गए बात? आप क्लियर है सबको? एकदम कंप्लीटली कंसेप्ट क्लियर है? ये इतना यूनिवर्सली और बहुत फोर्स देके इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जीडीपी में ये डेफिनेशन लागू होती है, पता चलेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जब हम एस्टिमेट करते हैं उसमें दूसरा बदल जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा मैं इसमें आपको फंसाना नहीं चाहता। आप इसको स्टैंडर्ड समझ लीजिए, ये स्टैंडर्ड की तरह काम करेगा, इसी के मॉडिफिकेशंस अलग अलग समय पे काम करते रहते हैं, और ये भी चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। इसलिए अभी जो प्रेजेंटली जैसे डेटा हो रहा है वैसा मैंने आपको बताया। इज दैट अंडरस्टूड नाउ?
आप सब लोग एक सुर में भाई बता दीजिए, क्लियर है तो क्लियर है। एक दो कंसेप्ट और ले लीजिए साथ में, फिर बाकी का कंटिन्यू है। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हम के शेप रिकवरी पर थे, और इस पर मैं आपको सर के गाइडेंस के बाद मेरे भी दिमाग में कुछ आया था, और वो मैं आपको बताना चाहता था। ये के शेप रिकवरी से ही रिलेटेड मेरे उसमें आया था मन में कि हाँ, इसका इवेल्युएशन ऐसे करेंगे हम कि के शेप रिकवरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वगैरह की बात सर ने बताई कि हम लोगों को उस पर्सपेक्टिव से उस चीज को जो है वो जज करना है। और दिमाग में ये आया था उस समय, वो सब हो गया, एग्रीकल्चर तो हो गया मन, ये याद आया था जब वो क्वेश्चन आ गया आदित्य का, तो ये दिमाग में चला था, याद है लकीली। तो वो ये था, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर आप देखिए तो जब डीपीएसपी का बात जब भी आप कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का बात आप कर रहे हैं अगर, तो क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये पॉलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, इसका जो दूसरा पहलू इकोनॉमी का है वो कौन सा है? क्या डज इट मेक सेंस टू यू? क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब आप बोल रहे हो, अब अभी डीपीएसपी पे आ गए कि नहीं आ गए, कि सरकार की जिम्मेदारी है भाई कि इसमें जो है हस्तक्षेप करे, और जिन लोगों को जो नीचे चलते चले जा रहे हैं, रिकवरी में जो नीचे चलते चले जा रहे हैं, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करें, इंटरवीन करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है क्या? ये फ्री मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से तो हो रहा है। ये जो हो रहा है के शेप रिकवरी, ये किस लिए हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी पे छोड़ दिया था, तो द गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन। Yes, that's how you understand it. This is the economic aspect of the same thing. GPSP का समझ लीजिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट ही है, ये उसका चेहरा है। तो आप उनको इंटरव्यू कराने को कह रहे हैं, तो भाई इसी प्रिंसिपल तो कह रहे हैं कि मार्केट के हवाले छोड़ के देख लिया, तो नाउ इफ इनइक्वालिटी इज राइजिंग, मार्केट तो ऐसे ही चलता है, तो अब देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट द गवर्नमेंट हैज टू डू। अंडरस्टूड? ये कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट। तो ये करने के लिए अब इसी से लिंक कैसे कितना ब्यूटीफुली सब कुछ जुड़ा हुआ है, देखिए ना, सब ने इतना बढ़िया टाइम में इंटरव्यू किया कि ये करने के लिए गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए हाथ में, कि अरे हमारे ये लोग तो इनइक्वालिटी और इनको बराबर लाइए भाई। इसके लिए चाहिए क्या? गवर्नमेंट के पास क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली आस्तिक, पैसा होगा ना, पैसा स्पेंडिंग के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए का मतलब क्या हुआ? क्या गवर्नमेंट का क्या ज्यादा होना चाहिए? अर्निंग्स, रिसीट साइड होनी चाहिए अच्छी खासी। तो अगर हाँ, टैक्स रेवेन्यूज कितने तरह के होते हैं गवर्नमेंट? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं? रेवेन्यू और कैपिटल। सिंपल सा हम यही सब समझे, हम ज्यादा नॉलेजेबल तो है नहीं इस मामले थ्योरी में, तो ये बात समझ गए। तो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर खूब अच्छे से परफॉर्म कर जाए, सुनिए मेरी बात ध्यान से, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज खूब गवर्नमेंट को आ जाए, खूब बॉयंट टैक्स कलेक्शन हो जाए, रेवेन्यूज खूब आ जाए, और इतना पैसा सरकार के पास हो कि डेफिसिट में दबी न जा रही हो। पॉइंट नंबर 2 समझते जाइए, सब आपस में रिलेटेड है। सरकार के पास इनकम साइड में खूब पैसा हो, इकोनॉमी से पैसा आया हो, नंबर 1। नंबर 2, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो। ठीक है, ये सब चीजें अगर ठीक हो तो गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है एक्सपेंडिचर की नहीं, तब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर सकती है। क्यों? क्योंकि उससे डेफिसिट बहुत नहीं बढ़ेगा, नंबर 1, और नंबर 2, ये पैसा जो जा रहा है सरकार का मार्केट में, उससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। दो ही चीज तो ध्यान रखनी है सरकार कि कहीं ये करने के चक्कर में डेफिसिट इतना हो जाए कि हम डेट ट्रैप में पड़ जाए, नंबर 1, कि हम खुद में बर्बाद हो जाए। हवाई जहाज में बोलता है कि दूसरे की सहायता करने से पहले अपना मास्क, वही वाली बात है कि द गवर्नमेंट शुड नॉट फॉल इनटू अ डेट ट्रैप, नंबर 1। नंबर 2, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस एक्शन शुड नॉट लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ना हो जाए। दो ही चीज है बस। अच्छा, तो यदि गवर्नमेंट के पास यह गुंजाइश हो, आप देखो हमारे वर्ड को पकड़ना, यानी गवर्नमेंट के पास गुंजाइश होनी चाहिए करने, ये शब्द से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप कि गवर्नमेंट तब स्टेप इन करेगी जब गवर्नमेंट के पास इन दोनों, ये जो दो पैरामीटर हमने कहा है, डेट ट्रैप में ना आ जाए, डेफिसिट ज्यादा ना हो भाई, और इन्फ्लेशन, तो गुंजाइश होनी चाहिए। ये जो गुंजाइश है, इसी को फिस्कल स्पेस कहा जाता है, कि गवर्नमेंट के पास वो फिस्कल स्पेस है कि वो चाहे तो इंटरवीन कर सकती है, इतना गुंजाइश है उसके पास। वेरी वेरी सिंपल। ठीक, ये कॉन्सेप्ट भी है। फिर व्हाट इज गवर्नमेंट डन टू करेक्ट द मेजर्स ऑफ, क्या
एक मिनट लिख लें, फिजिकल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, वी विल सी दैट इन द रिस्पेक्टिव चैप्टर्स। नेक्स्ट, what has been the trend in revenue expenditure and capital expenditure? You must have heard by now, I am very sure, those of you who have been interested in following current affairs, you must have by now, if you have followed economic survey, I am somehow very sure that you must have come across this glaring feature of the glaring shift in the expenditure pattern of the government, that now the government has actually started taking up capital expenditure as one of its priorities. You must have heard that, especially the state government. Surprisingly, if I remember correctly and memory serves me loyally, then state government capital expenditure has been seen to be rising by 67% or so, and central government's expenditure on some 30-35%. You understand my point? So अब याद है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बात की गई थी? Do you remember the vicious cycle and virtuous cycle, two cycles that we had considered? कि अगर सरकार का पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही खपता जाएगा तो एक विशियस साइकिल बन जाएगी इन्फ्लेशन की और उसकी, और अगर वर्चुअस साइकिल हुई तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह गया तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा? वो सारा पैसा तो वापस आ जाएगा, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट करके, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड, मल्टीप्लायर इफेक्ट करके कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया पैसा खुद तो वापस आ ही जाता है, अपने से कहीं ज्यादा अदा कर देता है। जैसे कोई आप गाड़ी खरीद लीजिए और उसको किराए पे चलाना शुरू कर दीजिए, वेरी सिंपल। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका सारा पैसा पाट देगी और हम लोग गांव में कहते हैं कि अब गाड़ी हमारी फ्री हो गई, गाड़ी फ्री हो गई है। इसका क्या मतलब होता है कि लोन्स जो उसके पास, उसके ऊपर जितना भी बर्डन था वो कमा के दे चुकी है हमको, वो गाड़ी फ्री हो गई। यही हम कहते हैं कि दैट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफ यू सी, दैट्स व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर डज। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर लेंगे तो हो गया। समझ गए इस बात को? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या ट्रेंड रहा है, ये सब देखा जाए। ये सवाल वो है जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते समय आपके दिमाग में पहुंचने चाहिए, तब आपका कॉन्सेप्ट फिट होगा सही होगा। नेक्स्ट, हाउ इज इंडियाज टैक्स जीडीपी रेशियो? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। वो ठीक है, ये बात तो आपकी ठीक है, बहुत सारा कलेक्शन हो गया हो, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट इज द अल्टीमेट मेजर कि टैक्स जीडीपी का कितना परसेंट टैक्स से आ जा रहा है सरकार? वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज एन एरिया वेयर देयर इज अ लार्ज स्कोप, huge scope of improvement for India, as you will see. ठीक है, तो टैक्स जीडीपी रेशियो हो गया। What next? What has been the contribution of direct and indirect taxes? Very important. Do you remember? We have already had this concept discussed in our sessions. That what are the characteristics and attributes of a progressive economy? कि जैसे जैसे इकोनॉमी प्रोग्रेसिव होती जाती है वैसे वैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का आपस का अनुपात कैसे बदलता है। हमारे केस में सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया में कैसा है, यही है। जब शुरुआत हुई थी, जब शुरू में प्लानिंग पीरियड शुरू हुआ था, तब क्या स्थिति थी? बहुत स्क्यूड था, इनडायरेक्ट टैक्स ही भरा पड़ा था, डायरेक्ट टैक्स कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे उसमें 90s में आते आते डायरेक्ट टैक्स ने इनडायरेक्ट टैक्स को सरपास कर दिया। मस्ट बी, दिस इज कॉल्ड द स्कीम ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, isn't it? Because we now know that डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इक्विटेबल टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिट्रोग्रेसिव टैक्स होता है। हम और हमारे यहाँ काम करने वाले ड्राइवर भाई और एक मजदूर, हम तीनों अगर पार्ले जी लेने जाएंगे तो हमको अलग अलग पैसे का नहीं देगा। एवरी वन ऑफ हैज टू बियर दैट कॉस्ट। यह है इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें इस बात का कोई जो है लिहाज नहीं किया जाता है कि आप अमीर हैं और आप गरीब। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में होता है, अगर मैं ज्यादा इनकम ग्रुप में हूं तो मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। लो इनकम ग्रुप वाले को हो सकता है पूरी तरह से फ्री हो, कैसे तेरा 1.5 लाख है, कोई बात नहीं, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। यू अंडरस्टैंड दैट, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। लास्ट ये एक स्लाइड पढ़ के फिर हम आगे जो छोड़ेंगे। इन्फ्लेशन फिर से ग्लोबल इशू बनके क्यों रीअपियर हो गया, ये सब क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हुआ होगा कि इन्फ्लेशन जो है फिर से आ गया है सामने। क्यों आ गया होगा इन्फ्लेशन, बताइए। और क्या मैं हिंट दे देता हूं, तब आप उसमें चैट बॉक्स में ट्राई करिए। मैं हिंट दे देता हूं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट हो सकता है आपस में, सॉरी, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में रिलेटेड हो। You understand this point? I think this is a direct point. What has happened during the pandemic crisis? The supply chain disruptions have taken place. Lockdown, this and that, supply chain has got disrupted. It is not unlike the other kind of inflation where it was demand pull inflation. You remember that? Demand pull inflation or supply side inflation, two kinds of inflation you know now. Okay, so in this scenario, what has actually happened, the characteristic of this inflation is that it is caused by supply chain disruptions all over the world. If that is the case, then, and if in order to try and pump the economy by the kickstart of
ऑफ इंजेक्शन ऑफ मनी सप्लाई, इसी में आप मनी सप्लाई भी कर देंगे कि भाई जरूरी है क्या करें, डिमांड और कंजम्पशन को बढ़ाना है, तो कंजम्पशन जब बढ़ेगा तभी इंजन चलेगा, वही जो हत्था लगा के एक बार तो स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा करना है तो ये एक चुनौती बनकर सामने आएगा कि पैसा तो दे रहे हैं लोगों के हाथ में, लेकिन आउटपुट उस तरह से जो मैच नहीं कर रहा है, तो इन्फ्लेशन हो गया ना। इज दैट अंडरस्टूड? इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो जितना भी तरह से पैसा दिया जाए आज तक, इट कैन, द चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी एनी, but if ultimately you are increasing the purchasing power and disposable income of your people, and if the firms, वही हाउसहोल्ड और उस पे आ गए ना, हाउसहोल्ड और फर्म पे आ गए कि नहीं आ गए, कि आप हाउसहोल्ड के हाथ में पैसा तो दे रहे हैं लेकिन फर्म जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो मार्केट में क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सिंपल। ठीक, अंडरस्टूड दिस? तो ये दोनों हुए थे। इंडिया में सीपीआई ट्रेंड इज सो डिफरेंट देन डब्ल्यूपीआई, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते आप नहीं जवाब दे पाएंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो क्यों दूसरी तरफ जा रही है। ये देखो डब्ल्यूपीआई दूसरी तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर कंपोजिशन, बास्केट्स में क्या डिफरेंस है, सर्विसेज और गुड्स किसमें आती है और किसमें सर्विसेज नहीं काउंट होती है। टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, और क्यों ऐसा है कि कौन से टैक्सेस हैं जो इसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं सीपीआई से, डब्ल्यूपीआई से सीपीआई में आते आते, थिंग्स लाइक दैट। इस तरह की चीजें भी आपको जाननी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट का सीधा आर्टिकल है आज के इकोनॉमिक फाइनेंशियल एक्सप्रेस के पेज नंबर 2 में। उन्होंने एक क्या लिया है कॉन्सेप्ट, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। क्या ना, आप ठीक पढ़िए, सब पूरा पेपर आउट है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अब इस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का उन्होंने एक लिया है सीपीआई, एक लिया है डब्ल्यूपीआई और एक लिया है उन्होंने एनर्जी। अब वो जो ये आर्टिकल है क्या होता है, वो जरूरत है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की। अब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो कैसे रहा, जो हमारा होलसेल प्राइस है, डब्ल्यूपीआई बोलते हैं, जो बड़ा होलसेल प्राइस इंडेक्स है, यह डबल डिजिट में कैसे आ रहा है। इसलिए क्या हमको जरूरत है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से सावधान रहने की। अब आपके प्रीलिम में सवाल यही आ जाएगा कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होता क्या है, या इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो कैसे बनता है। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की है वो कहां से बनाने की कोशिश की है, एलिवेटेड ग्लोबल एनर्जी प्राइस। जो हमारा एलिवेटेड ग्लोबल एनर्जी प्राइस है, यह एलिवेटेड ग्लोबल एनर्जी प्राइस से सावधान होने की जरूरत है। अब जो हाई डब्ल्यूपीआई है कैसे होता है, जो हाई डब्ल्यूपीआई होता है पार्टली होता है ड्यू टू बेस इफेक्ट, जो क्या इवन आउट होता है, और इन्फ्लेशन रीअपियर करता है एज ग्लोबल इशू। इन्फ्लेशन रीअपियर कैसे कर रहा है ऑन ग्लोबल इशू, किसमें, बोथ एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज में। इंडिया का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है, जो 5.6% था दिसंबर 2021 में, जो कि हमारे बैंड के अंदर था। अब इसके बाद जो कोविड इंड्यूस वीकनिंग हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, और जो रिकॉर्ड ग्लोबल क्रूड प्राइस का था, उससे इंपैक्ट क्या आता है। तो जो शार्प इंक्रीज है इंटरनेशनल प्राइस जो क्रूड ऑयल है और अदर इंपोर्टेड जो इनपुट्स है और हाई फ्रेट कॉस्ट है, तो हमारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहां से आता है। हमारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का जो बेस पॉइंट है, जो हमारा इंक्रीज हो रहा है क्रूड ऑयल प्राइस में, इंपोर्टेड इनपुट्स में और हाई फ्रेट कॉस्ट में, आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो 15 से। अब देखिए, अब फिर आइए आप इस प्रेजेंटेशन के ऊपर, यह प्रेजेंट व्हाई इन्फ्लेशन रीअपियर एज अ ग्लोबल इशू। जो इन्फ्लेशन रीअपियर किया, अब आप इसको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करिए, जो कि आ रहा है हमारे क्रूड ऑयल प्राइस से, इंपोर्टेड इनपुट से और हाई फ्रेट कॉस्ट। अगर इसको आप देखने की कोशिश करें। दूसरा, सीपीआई ट्रेंड डिफरेंट क्यों है डब्ल्यूपीआई, ये 100 ने पढ़ाया हुआ है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। तो ये जो तीन कॉन्सेप्ट है, ये आज के इकोनॉमिक्स
टाइम्स की में आर्टिकल ही है ये आर्टिकल उन्होंने कहां से निकाला है? इन्होंने निकाला है इकोनॉमिक सर्वे से ही। Imported inflation, these are catchy terms. Please always be very cautious of such catchy phrases, okay? Imported inflation, taper tantrum, and you will see later on barbell strategy, agile response. So be very cautious these days. Sir, yes, sir, yes, sir. जी जी सर, सर अभी समय हो गया सर. Okay, sir. So 10 minutes और सर. So these catchy phrases you always be very cautious about. Okay, they can be just lifted and they can be asked like that. तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को. तो और ऐसे कैची फ्रेजेस जो है वो कई बार प्रीलिम्स में भी भेंट में आ जाते हैं. तो बी वेरी कॉशियस. सो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या है आपने देख ही लिया. ये एक इन्फ्लेशन ऐसा जिसके की जो रीजंस हैं, the reasons of origins of those inflationary tendencies, they lie outside the economy. Then you obviously you import oil, at the same time you are importing inflation associated with oil prices and energy prices. Absolutely. So you can understand that. Then there is taper tantrum. ये क्या होता है? ये सब शब्द खूब यूज किए गए हैं. 2013 में क्या हुआ? In 2013 what happened? जो 2008-9 में वो सब क्राइसिस हुई थी 8 वगैरह में. तो धीरे धीरे उसके लिए क्या स्लो डाउन को करने के लिए मनी जो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई गई. खूब सारा पैसा मार्केट में डाला गया. 2-3 साल तक डालते रहे. उसके बाद एक सीमा आती है कि जो आरबी जो भी सेंट्रल बैंक है कंट्री का, वो डिसाइड करता है, कॉल लेता है कि बस अब हो गया, क्वांटिटेटिव ईजिंग करने की जरूरत अब नहीं है. तो वो फिर अनाउंस करता है कि भाई अनाउंस करता है या उसके जैसे भी उसकी टेंडेंसीज जो है उस लोगों को पता चलती है मार्केट को कि अब जो है ट्रेजरी बिल्स जो है वो उस तरह से परचेज करने की जरूरत नहीं, काफी पैसा चला जा चुका है मार्केट में. यू अंडरस्टैंड? गवर्नमेंट हालांकि यहाँ पर स्कोप नहीं है सर. गवर्नमेंट या आरबीआई कह लो या जो भी सेंट्रल बैंक हो, वो मनी सप्लाई करने के लिए क्या करता है? मार्केट में मनी सप्लाई करने के लिए बॉन्ड्स परचेज करता है और मनी छोड़ता जाता है ना इसमें. तो कभी ना कभी तो इसमें स्टॉप आएगा ना. इसी स्टॉप की वजह से कि अब हम नहीं खरीदेंगे या अब हम कम खरीदना शुरू कर. टैपर करना मतलब उसको कम करते जाएंगे. तो कम करते जाएंगे. इसी तरह के न्यूज से एक अनप्रेसिडेंटेड पैनिक हो गया था यूएस के वहां बॉन्ड मार्केट में. एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसको टेपर टेंट्रम कहते हैं. और हम आज क्यों पढ़ रहे हैं 9 साल पुरानी चीज? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वही सिचुएशन अब आगे आएगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है. क्योंकि फिर वही हुआ ना. उस समय क्या कारण था? पैसा जो है सप्लाई करने का क्या कारण था इकोनॉमी में? मनी सप्लाई करने का क्या रीजंस थे उस समय? किस चीज को काउंटर करना चाह रहे हैं? अभी तो बताया. कौन सी क्राइसिस हुई थी उस समय? आपको ध्यान होगा, है ना? ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी कि नहीं उस समय? ऐसे ही सिचुएशन अभी भी है, हुआ है कि नहीं हुआ है? मॉनेटरी ईजिंग की गई है कि नहीं की गई है? पैंडेमिक में जो है मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए कोशिश की गई है कि नहीं की गई है? तो अब जब इतना मनी हो गया और इकोनॉमी रिकवर कर रही तो वापस करेंगे कि नहीं करेंगे उसको? They will start narrowing down the pumping of money or not. अब वो वैसा ही सिचुएशन सेम आएगी तो हो सकता है फिर वही हो जाए. आप समझ गए बात? तो वैसी सिचुएशन दोबारा कहीं टेपर टेंट्रम ना आ जाए. तो अब कहा जा रहा है कि क्या हिंदुस्तान इस तरह के किसी टेपर टेंट्रम जो कि 2022 में हो सकता है उससे लड़ने के लिए तैयार है? तो बोला यस हम तैयार हैं. कैसे तैयार हैं? कैसे सब चीजें आपस में देखिए जुड़ी हुई हैं. ये सब ठीक है, आप समझ ही गए, आप जानते हैं कैसे तैयार है. टेपर टेंट्रम से जो ग्लोबल टेपर टेंट्रम और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है दोनों आपस में कनेक्टेड है. ये जो है इसका कॉज है. अगर ये ज्यादा होगा तो फिर सरकारें ये करने पे मजबूर हो जाएंगी. समझ गए? लिक्विडिटी को वापस खींचने पे मजबूर हो जाएंगे अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया. और अगर ऐसा हुआ तो भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कैसे पता चलेगा भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? क्या भारत उसके लिए तैयार है? हाँ तैयार है. कब तैयार होगा? लेकिन ये कॉन्फिडेंस से कब कह सकते हैं कि हाँ भारत तैयार है? अगर भारत के पास ये पोजीशन उसकी अच्छी है. सब आपस में देखिए एकदम कनेक्टेड है कंसेप्चुअल. अगर इंडिया के पास फॉरेक्स पोजीशन जो है, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे स्ट्रांग है, हमारे फिस्कल डेफिसिट्स और जितने भी फिस्कल इंडिकेटर्स हैं वो सस्टेनेबल रेंज में है, तो यस इंडिया कैन टैकल दैट प्रॉब्लम. यू मस्ट रिमेंबर दैट सेवरल इकोनॉमिस्ट्स एट दैट टाइम आल्सो ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ 2008, that time also many people said that India actually survived because of the black economy or because of the parallel economy which was completely unaffected by this contagion. इस तरह की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? तो आज की तारीख में जब इकोनॉमी को इतनी जोर शोर से डिमोनेटाइजेशन के समय से लेकर अभी तक
इतने जोर शोर से फॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर ये बहुत बड़ा रिस्क है कि बाहर जो भी होगा उसका सीधा असर आप पे पड़ेगा, क्योंकि आप भी उसी नाव में है। फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन का, कि आप उसी नाव में है जिसमें बाकी सब सवार है। ब्लैक इकोनॉमी में क्या है कि एक दूसरी नाव भी हमारी चल रही है, ज्यादा होगा तो उधर कूद जाएंगे। इट्स लाइक दैट। So if you have strong forex reserves, then yes, you can survive such shocks, or at least you can provide good buffer for them. So do we have good forex reserves? Do we have good forex reserves now? Tell me. Yes, yes. If you are following current affairs, you must know. कितना 630 और कितना 634 बिलियन, कितना कितना है एग्जैक्टली। तो इस प्रकार का हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, खूब अच्छा सा फॉरेक्स रिजर्व हो गया है। तो नो, वी थिंक कि वो जो $256 बिलियन का जो हमको लोन पे करना है, जिसकी मेच्योरिटी अब आ रही है, उसके बाद भी हमारे पास बहुत कुछ बचेगा, और इस तरह हम उसको जो है सस्टेन कर सकते हैं, इस शॉक को हम सह सकते हैं। सब आपस में कनेक्टेड है, ध्यान रखना। इंडिया का ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो सिचुएशन है पिछले 2 साल से इतना अच्छा क्यों है, ये सब क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे। लास्ट 2 ईयर से पॉजिटिव में हम क्यों जा रहे हैं? करंट अकाउंट जो है वो थोड़ा बहुत डेफिसिट में चला भी आता है, तो कैपिटल अकाउंट तुरंत उसको सरपास कर देता है। कैपिटल इनफ्लो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है इंडिया में रिसेंट ईयर्स में, इसलिए हम सरप्लस में चले जा रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के केस में। ठीक है, इंडिया के एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी इंडिकेटर्स क्या क्या है, हम कहां कहां पर एक्सटर्नली वल्नरेबल हैं। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी सब याद आ रहा होगा आपको। फॉरेक्स रिजर्व ग्लोबल मॉनेटरी नॉर्मलाइजेशन से कैसे हेल्प करेंगे, ये वही है लाइन जो, अब यही दिक्कत है कि अगर इकोनॉमी को ठीक से नहीं पढ़े तो आप जो है सवाल नहीं समझ पाएंगे, जबकि आपको आंसर आता है। हाउ कैन फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री हेल्प विद ग्लोबल मॉनेटरी नॉर्मलाइजेशन? ये वही बात है जो भी हमने की, कि अगर आप टेपरिंग कर भी डालिए, पैसा वापस में ग्लोबल खींच भी ले सब लोग, तो भी हम सह ले जाएंगे अगर फॉरेक्स अच्छा है तो। मॉनेटरी नॉर्मलाइजेशन का अर्थ क्या हुआ कि फिर से नॉर्मल हो जाए सब कुछ। फिर से नॉर्मल होने का मतलब क्या था, एबनॉर्मल क्या था? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लिए हुए थे ना हम लोग, कि जितना मनी हो सकता है पंप करो, तो उसको नॉर्मलाइज करोगे तो वापस आ गए ना कि अब नहीं पंप करेंगे। वही बात हो गई, घूम पेपर टेंट्रम वाली जैसी बात हो गई कि नहीं हो गई? तो कितने भी अलग अलग फ्रेजेस करके कोई इस्तेमाल करके आपको बहकाना चाहे, आपको इन सबका आइडिया होना चाहिए कि जवाब वही रहेगा। ठीक है, इस बात को समझिए। फिर बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास है, बहुत सारा, तो क्या ये बहुत बड़ी खुश होने वाली ही बात है, या इसके कुछ कॉस्ट भी है? बहुत मैसिव फॉरेक्स है, जरूरत से भी ज्यादा हमारे पास, कोई चिंता की बात नहीं है। इज दिस हैप्पीनेस एनफ, और वी शुड ट्रेवल बियॉन्ड इट एंड फाइंड आउट व्हाट आर द ट्रेड ऑफ्स? इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व रखने का कुछ नुकसान भी है क्या किसी इकोनॉमी को? है तो क्या? ठीक। फिर आरबीआई कैसे मार्केट को स्टेबलाइज किया है आरबीआई ने इस पूरे उसके दौरान? आप समझ सकते हैं कि ये पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो होगा वो कहीं ना कहीं उसका सेंटर स्टेज क्या होगा, पैंडेमिक। तो इसलिए इकोनॉमी का अब कोई भी सवाल, शायद ही कोई ऐसा सवाल हो जो आपको पूछा जाए और आप अटेम्प्ट करें और उसमें पैंडेमिक का इन्फ्लुएंस ना आए। तो आरबीआई ने इस पैंडेमिक के दौरान मॉनेटरी पॉलिसी ने कैसे काम किया है और फिस्कल पॉलिसी ने कैसे काम किया, दोनों को एकदम एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि आ जाएगी आगे के चैप्टर्स में, आ ही जाएगी कि फिस्कल पॉलिसी ज्यादा बेटर रहा, इफेक्टिव रहा, या मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट। चलो एक गेस करो, गेस करो भाई, इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें कौन सा बेटर इंस्ट्रूमेंट है, बताओ जरा चैट बॉक्स में। फिस्कल अगर मानते हो तो फिस्कल लिखो, मॉनेटरी मानते हो तो मॉनेटरी लिखो। ठीक है, मैं अपने सवाल को लास्ट पॉइंट बता देता हूं आपको। अगर जब जान रहे हो कि प्रॉब्लम यहां से हो रही है, अब बताओ, अब बताओ कौन सा पॉलिसी ज्यादा ठीक होगा, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा? सोचो, दिमाग लगाओ। आप समझ में आ रहा है? इसको मॉनेटरी पॉलिसी अकेले ठीक कर सकता है सप्लाई साइड के प्रॉब्लम को? मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर सकती है? अगर इन्फ्लेशन किसकी वजह से हो, लोगों के पास जो है पैसा, डिमांड साइड को एड्रेस करता है ना मॉनेटरी पॉलिसी। समझ गए? आप ज्यादा बताएंगे नहीं, बाय नाउ यू शुड बी थिंकिंग स्पून फीडिंग टाइम इज ओवर। ठीक है, चलो बाद में फिर बाकी करेंगे, जारी रखेंगे हम आगे भी सब।
Despite that, most of the concept has been explained by the Shaw, you are not able to respond. You need to revisit the all lectures again. अब जैसे कॉन्सेप्ट पेपर टेंडर अगर आप गलत कर जा रहे हो तो आप नहीं पास हो सकते फ्रेंड्स, बता रहा हूं। अगर आपसे पेपर टेंडरम सही नहीं हो रहा है तो नहीं आप पास कर सकते। आप समझने की कोशिश करो कि कौन सा सवाल गलत हो जाने पे हम रेस से बाहर हो जाएंगे। पेपर टेंडरम सीधा सिद्धांत है। आई रिमेंबर द शॉर्ट क्लास उन्होंने लिया था, साफ शायद उन्होंने इस शब्द को उतना हाईलाइट न किया हो, कॉन्सेप्ट साफ साफ हाईलाइट किया गया था कि जब मनी का डिस्ट्रेस होता है, जब स्ट्रेस होता है, तो आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट की बॉन्ड को बाय करती है, लिक्विडिटी मार्केट फ्लश करती है। सीधा कॉन्सेप्ट था। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब मार्केट में स्ट्रेस होता है, आप इसको और आसानी से एकदम देसी भाषा में समझो, पैसा जेब में कम है, पैसा नहीं है, मार्केट पैसा नहीं है, तो आरबीआई नोट क्या ऐसे छाप सकती है क्या? आप समझो आरबीआई नोट छापती कैसे है। जब भी आरबीआई नोट छापती है तो उसके पहले क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटी क्रिएट होती है। सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटी क्रिएट कर देती है, ये गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है। अब उस गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटी को आरबीआई ने परचेज किया, उसको परचेज करने के लिए आरबीआई ने नोट छापा, वो नोट मार्केट में गया। ये क्या है, लिक्विडिटी को कंट्रोल किया गया, लिक्विडिटी को मार्केट में लिक्विडिटी को फ्लश कर दिया गया। अब इसको उल्टा करिए, मार्केट में पैसा बहुत हो गया, कम करना है, इसको उल्टा कर दीजिए आप, इट्स रिवर्स प्रोसेस। अब जैसे हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा है, फायदा क्या है इसका, हम अपने रुपये के वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। सवाल देखिए ऐसे आएगा कि फॉरेक्स ज्यादा है, मेरे पास डॉलर ज्यादा है, चलिए आप इसको फॉरेक्स से हम एक मुद्रा में जाते हैं, हमारे पास डॉलर ज्यादा, फायदा क्या होगा। आप हमेशा, आप कोई इकोनॉमिक्स का पेपर खोलिए, चाहे वो इकोनॉमिक एक्सप्रेस हो, इंडियन एक्सप्रेस, सॉरी बिजनेस स्टैंडर्ड हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, उसमें हमेशा आता है कि आज रुपया का मूल्य गिरा, आज डाउन हुआ, हमेशा आता है, ये रेगुलर फीचर है। तो जैसे ही अब आरबीआई इंटरवीन करती है, इंटरवीन नहीं करती है। जब आरबीआई इंटरवीन करेगी तो फॉरेक्स के सहारे ही करेगी। अगर आरबीआई के पास फॉरेक्स नहीं है तो इंटरवीन नहीं कर सकती है। आरबीआई फॉरेक्स को सेल और परचेज करके रुपये के रेट को कंट्रोल करती है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इफ द आरबीआई डज नॉट हैव द फॉरेक्स, इफ आरबीआई डज नॉट हैव द डॉलर, it cannot control the rate of the rupee. That's why we need a good forex. Good forex रखने के क्या फायदे हैं, हमारा जो फॉरेन ट्रांजैक्शन अच्छा हो जाता है, हमको खरीदने में सुविधा हो जाती है, हम अपने फॉरेन डेट को देके इंटरेस्ट कॉस्ट कम कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी चीज क्या है, हम अपने रुपये के कंट्रोल कर सकते हैं। अब प्रो वतन अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत क्या है, कई बार सवाल उठता है, ये सवाल हमने अपने इंटरव्यू में कई कैंडिडेट्स पूछा था। तो कोई बताता है कि अमेरिका का ज्योग्राफी है, सैनिक शक्ति है। अमेरिका का डॉलर जो करेंसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द करेंसी। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका सैंक्शन लगाता कैसे है, डॉलर ट्रेड बंद कर देता है। आपने सुना कि ईरान बर्बाद हो गया, क्यों, अमेरिका ने सैंक्शन लगाया। अब क्या है, यू कैन नॉट ट्रेड इन डॉलर, तो ट्रेड किसमें करोगे, रूपी टू रूपी करोगे, उसकी लिमिटेशन है। डॉलर एक ऐसी करेंसी है कि उस करेंसी की वैल्यू है। हर इंडिया में डॉलर के परचेज करने पर बैन है, एक सीमा के बाहर नहीं कर सकते, क्राइम, क्यों, और उसके बाद भी डॉलर से रखना चाहते हैं। तो क्या है, आप जो हम लोग इस सीरीज चला रहे हैं उसमें एक बड़ी कोशिश क्या है, हम आपको समझाने की कोशिश करें। सवाल आते थे, हम ये सोचो कि हम सब पढ़ा देंगे, ये भगवान भी नहीं कर सकते हैं, गॉड कैन नॉट डू दिस, वी कैन ओनली गिव द आइडिया। देखो ये आइडिया, रास्ता पकड़ो आप। अब आपने इकोनॉमिक सर्वे इस तरह से नहीं देखा होगा, we purposely stopped at the class at the 90 minute। अभी जो अपने पास क्या प्रेजेंटेशन था वो 1-1.5 घंटे का और प्रेजेंटेशन, हमने 5-6 पेज किया, 40 पेज प्रेजेंटेशन है, लेकिन अभी आपको ग्रेस्प नहीं हो रहा है। तो you again read it, we'll again start tomorrow from this point of time and then we'll see further what can do। Thank you। कोई सवाल वाल है क्या किसी का? Any question have you? No।